Hello students, good morning. Welcome to your civics class. Today we are going to start the fifth chapter from part A, South Asia and Contemporary World. Emergence of independent nation in Asia and Africa was an important feature of the post-World War period. India's struggle for independence had become a source of inspiration for all the enslaved countries of Asia. India got her independence in 1947 and in 1948 Myanmar and Sri Lanka also became independent. So after independence, all these countries constituent the South Asia. South Asian countries are suffering from poverty, hunger, disease and illiteracy. सो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये सारी कंट्रीज़ किस चीज़ से सफ़र कर रही थी? पॉवर्टी से, हंगर से, डिजीज़ और इलिटरेसी से भी सफ़र कर रही थी. The two prominent countries of the region, India and Pakistan, are armed with nuclear weapons. If walls of mutual distrust separated Asian countries fall down and the whole South Asia with a total population of nearly 145 crore can properly develop all its resources. सो जो एक म्यूचुअल जो इन लोगों के बीच में ट्रस्ट था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो चुका था. और अगर साउथ एशिया इस पे से अलग हो जाती तो पूरी जो पॉपुलेशन है अबाउट 145 करोड़, इनको अपने सारे रिसोर्स खुद से प्रॉपरली डेवलप करने होते. साउथ एशियन अफेयर्स. It is next to the impossible not to mention the game of cricket in any discussion of South Asia. Cricket has developed into an obsession in India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. सो क्रिकेट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम हो गया था बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. Emotionally upset earlier in Pakistan also there was a loud uproar over the cricket scandal. उस टाइम पे क्रिकेट के भी बहुत सारे स्कैंडल होते थे. Cricket fans gave vent to their anger by storming the cricketers' house. In 2011, MS Dhoni, who led the Indian team to victory in the ICIC World Cup tournament, had become the king of the cricket world. सो क्रिकेट के थ्रू भी जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि अगर क्रिकेट पे किसी एक कंट्री के जो भी टीम रहती थी अगर वो विन नहीं कर पाती थी गेम को, सो जो भी फैंस थे वो कहाँ पे अटैक करते थे? उनके हाउसेस पे. व्हाट इज़ साउथ एशिया? सो साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया इज़ अ रीजन दैट इंक्लूड्स कंट्री लाइंग साउथ ऑफ हिमालयाज एंड सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. The region is marked by many types of seasons and various kind of climates. Because of this, it has a very rich and varied vegetation, minerals and forest of widely different types. सो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सीजन्स थे, डिफरेंट काइंड्स के क्लाइमेट्स थे, इसीलिए यहाँ की ये रीजन बहुत ज़्यादा रिच था वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट के लिए. Various political system in South Asia. In 2007, many South Asian countries completed 60 years of their independence, but in terms of several liabilities available to their people, the track record to the most of these countries is highly disappointing. India and Sri Lanka. There is a little doubt that India and Sri Lanka have been able to keep the democratic system intact despite a general decline in the quality of administration. सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे, बिकॉज वहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था और जो इलेक्शंस होते थे वो भी बहुत ज़्यादा फेयर वे में नहीं होते थे. नेक्स्ट इज़ बांग्लादेश. इंडिया प्लेड अ वाइटल रोल इन द लिबरलाइजेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश. इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो लिबरलाइजेशन मूवमेंट था बांग्लादेश में जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे. नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान. आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, पाकिस्तान हैड बीन फॉर अ फ्यू ईयर्स अंडर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. इन October 1999, however, after the 11 years stint as democracy, Pakistan relapsed into military dictatorship. So
पाकिस्तान में जो कोल्ड वॉर के टाइम में जो टाइम था वो बहुत अच्छा नहीं था। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल वे में चलती थी, डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट थी। स्पेशली वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती थी। नेक्स्ट इज़ नेपाल। नेपाल हैड अ कॉन्स्टेंट मोनार्ची बट following the movement for democracy, the Nepal Parliament in 2006 declared that the Nepal was a secular democratic state. सो मोनार्ची मीन्स नेपाल में पहले किंग और क्वीन का रूल रहता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में आफ्टर 2006 नेपाल पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि अब नेपाल में भी सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है ये। नेक्स्ट इज़ भूटान। भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान में भी सेम सिचुएशंस थी। रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स किसी की वैल्यू पे या किसी भी चीज़ पे अपना जजमेंट देना। As we have seen, India and Sri Lanka have been democratic governments ever since they have independent in 1947 and 1948. But the record of the Pakistan and Bangladesh in this regard has generally been disappointing. So जैसे इंडिया और श्रीलंका में 1947 और 1948 के बाद में जैसी गवर्नमेंट आई है, जो डेमोक्रेसी जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी वो उतनी यूज़फुल और इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट इज़ इन मिलिट्री एंड democracy in Pakistan. In Pakistan, the pro-military group have usually been more powerful. Pakistan emerged as an Islamic nation in 1947 following the partition of India. The founder of Pakistan, Mr. Jinnah, wanted the country to be governed along Western political concepts. So पाकिस्तान में किसका गवर्नमेंट चल रही थी? मिलिट्री ग्रुप्स की चल रही थी, जो मिलिट्री पूरा कंट्रोल करती थी पाकिस्तान में गवर्नमेंट को। When people started opposing Ayub Khan, he handed over the reins of power to General Yahuwa Khan. So elected civilian government. Civilian कौन होते हैं? जो आर्मी में या किसी भी मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जनरल याहया खान हैंडेड ओवर पावर टू Zulfikar Ali Bhutto. He was a civilian government which remained in power till 1977. But since the army had tasted the fruits of power. So जो जनरल वहाँ के थे याहुआ खान, उन्होंने सारी पावर्स को किसको दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था जुल्फ़िकर अली भुट्टो को। लेकिन जो वहाँ की मिलिट्री थी उनके माउथ में एक टेस्ट लग गया था पावर का, जो उन्होंने एक पावर जो थी वहाँ की उन्होंने रियलाइज़ कर ली थी। सो इसीलिए वो चाह रहे थे वहाँ की मिलिट्री की जो पूरी गवर्नमेंट हो, जो पूरी मतलब डिक्टेटरशिप हो, वो किसकी हो? मिलिट्री की हो। जुल्फ़िकर भुट्टो was tried for the murder for a political opponent and excluded in April 1979. The military government of General Zia-ul-Haq. सो ज़िया-उल-हक की भी जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो कहाँ पे रूल कर रही थी? पाकिस्तान पे। और ज़िया-उल-हक ने जो सिस्टम था उनकी गवर्नमेंट का, उसका क्या नाम दिया था? पार्टीलेस डेमोक्रेसी। मींस कोई भी पार्टी वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है, सारी पावर्स किसके पास रहेंगी? मिलिट्री के पास रहेंगी। इसीलिए वहाँ का उसका नाम दिया था उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी। Next is democratic government from 1988 to 1999. In the general elections held in 1988, the Pakistan People Party (PPP) emerged victoriously. Its leader Benazir Bhutto became prime minister, but she was dismissed in 1990 for about 10 years. There was a quick succession of democratic governments, one after the other. In February 1997, Nawaz Sharif was sworn in as Pakistan's prime minister.
नेक्स्ट इज परवेज़ मुशर्रफ डिक्टोरियल रिजाइम। डिक्टोरियल्स मीन्स जो फोर्सफुली अब खुद से रूलर बन जाए, जो फोर्सफुली खुद रूल करे। सो पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने खुद को ही वहाँ का गवर्नमेंट का हेड बना रखा था। डिक्टेटर रूल वहाँ पे था। फोर्सफुली वो सारी पावर्स को अपने हाथ में लेकर के सारी रूल कर रहे थे और सारी सिटीजन्स पे रूल कर रहे थे। किसी अदर पार्टी के मेंबर्स को यहाँ पे कोई भी राइट नहीं था कि वो इलेक्शंस कंडक्ट हो या उसमें वो लोग जीत सकें। नो सिंगल पार्टी इमर्ज विक्टोरियसली इन द इलेक्शंस टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मुशर्रफ वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। इसी का एडवांटेज लेकर के परवेज़ मुशर्रफ थे वो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती गई। नेक्स्ट इज़ द 2008 जनरल इलेक्शंस। दिस वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।